Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable viewers. Today, we are going to discuss a topic which interests and is useful for almost everybody and every citizen of this country. It is only how to judge and how to be aware of the market forces that govern our life. So, these are called the life lessons from Warren Buffett. So one of the great man who had certain, I have done some work on this. So I am just giving it for the information of the entire people so that they are also benefited. So what it says, जब लोग मार्केट में जब मार्केट में लोग डरे हुए हैं, एक डर है कि डर है लोगों के अंदर ये बैठा हुआ है कि प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, प्राइसेस गिर जाएंगी, शेयर मार्केट विल फॉल, देन try to be, that's a time where you should become greedy, लालची हो जाइए, प्राइस फॉल हो रहा है, होगा, आप खरीद लीजिए. And when to become greedy and when to become fearful. So these are the two indications. When others are fearful, try to become greedy. When others are greedy, then be fearful. That means it is overpriced. आपके पास ये इंडिकेशन है, ये जो आइटम आप खरीद रहे हैं ये ओवर प्राइस्ड है, इसी इतनी वक़्त नहीं है. When others are greedy, please be fearful. डर डर के खरीदिए. Then second point it is stock market is a voting machine. Just like voting machine gives you an indication कि पब्लिक की वोट किस तरफ जा रहा है. And stock market has got two roles. One, it is a voting machine for a short term, and for a long term it's a weighing machine, तोलने वाली मशीन है. तो जब आपकी स्टॉक मार्केट फॉर ए शॉर्ट टर्म इज ए वोटिंग मशीन एंड फॉर ए लॉन्ग टर्म इट्स ए weighing machine that gives an indication that value of the product will endure, ये आपको आइडिया देती है. तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है. Then invest in what you understand. बहुत सारे लोग अंधों की तरह पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम प्लान. आई नो वन ऑफ द शेयर मार्केट, वन शेयर आई हैड. आज की डेट में ड्यूरिंग द लास्ट 34 years वी हैव नॉट सीन इवन ए फाउंडेशन of that factory. And but I had purchased one shares at the rate of 10 from the open market, and they are lying with me. And suddenly in between about 5-6 years back, वो मार्केट में उसका रेट कोटिंग होना शुरू हो गया. I was shocked that there is no existence of the factory. वहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की जात, ये पैसा कैसे जा रहा है, कहाँ कौन खरीदेगा. एंड somebody approached me also, if you want to sell it, I want to buy it for 20 rupees per share. I told him, यार it is a losing, there is no place, no market, no आदमी, no कोई वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ नहीं है. तो I will feel let down अगर आपने मुझे पैसे दे दिए और बाद में आपका पैसा डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. Somehow he purchased it and now there is no existence. So I gained that some money and that man lost it. तो उसी जगह ही पैसा लगाइए जिसके बारे में आपको तमीज़ है, जिसके बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो. जिसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते हो, भगवान के लिए अपना पैसा मत लगाइए. टाइम
ही आपका सबसे बड़ा एली है। आपका साथी सिर्फ वक्त है, और वक्त के साथ अपने आप को चलाइए। अगर आप वक्त के साथ अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन इन माई लाइफ, दे लेफ्ट सर्टन वेरी नाइस जॉब्स, पक्का सरकारी जॉब्स, एंड दे आर मेकिंग lot of money for some time in the share market and other market investments. They fell down to a level beyond repair. Now they are on the road. Then let compounding do its quiet work. जो कंपाउंडिंग होती रहती है, चीज़ों के क्या दाम बढ़ते रहते हैं, उसको अपना काम करने दीजिए और समय को वॉच करिए. When is the appropriate time, then you go for buying and selling. Do not time market. It is about holding, have a steady hand. Do not time market. समय को मत खरीदने और बेचने की कोशिश करिए. टाइम को मार्केट मत करिए, उसको अपना काम करने दीजिए, और जब आपको अप्रोप्रिएट समझ में आए तभी आप लगाइए. आपकी रेपुटेशन, किसी शेयर की रेपुटेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, किसी कॉलेज की रेपुटेशन, किसी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन, किसी इंडिविजुअल की, नेता की रेपुटेशन, इट टेक्स 25 मिनट्स टू बिल्ड. 25 मिनट लगते हैं उसकी रेपुटेशन को बनाने में, और 5 मिनट लगते हैं वो सारी रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए. छोटी सी एक्शन से आप धराशायी हो जाते हैं. तो बी केयरफुल. जो मेहनत से समय लगा करके आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसको एकदम जल्दी से ख़त्म होने मत दीजिए. प्राइस क्या चीज़ होती है? लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन है. व्हाट इज़ द प्राइस? प्राइस इज़ व्हाट यू पे. जो आप पैसा अपने हाथ से दुकानदार को या सेलर को देते हैं, वो इज़ ए प्राइस. वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट. देयर इज़ ए कन्फ्यूजन बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. इट हैज़ गेट ए वैल्यू फॉर द मनी यू पे. प्राइस जो आप उसको देते हैं, वैल्यू जो उसकी एवज में वो पैसा देने के बाद जो आपको सुख सुविधा या वो आइटम मिलता है, उसके क्या मिलता है, दैट इज़ प्राइस. You pay and value you get it. Then only buy something you would be happy for 10 years. कोशिश करिए एक ऐसी चीज़ को खरीदने की कोशिश करिए जिसको खरीदने के बाद आपको 10 साल का सुख मिलेगा. Probably that was the concept Japanese had acquired. Japanese पहले हमारे देश में जो भी चीज़ें, इवन इंटरनेशनली जो भी चीज़ें बनती थी, इस तरह से डिज़ाइन की जिसकी कोई लाइफ, एंडलेस लाइफ है. जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो कार चलती रहेगी. कारों की लाइफ देन देयर इज़ नो नीड. कुछ सालों के बाद आपको उस चीज़ से वो अच्छी नहीं लगती. टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली. 10 साल के अंदर जो है इंफॉर्मेशन सेक्टर है, उसमें कहाँ से कहाँ चलेगी. मोबाइल लाइफ कहाँ से कहाँ. स्मार्टफोन में भी हर 2 महीने के बाद आपको नया मॉडल आ जाता है. नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर, नए यूजेस. इफ़ यू आर मेड वन मोबाइल दैट विल लास्ट फॉर 20 ईयर्स और 30, उसको क्या करेंगे? बिकॉज यू हैव टू डील विद द पीपल. दोज आर इंटरनेशनल. आपके बहुत सारे दोस्त बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े सिटी में रहते हैं. उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं. टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़त्म हो गई हैं. बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ईट कर गया. कहाँ उस पुराने ज़माने का मोबाइल है, कहाँ पर वो कैमरे हैं, वहाँ पर कहाँ पर रील है, आज कहाँ पर जो वीडियो शादियों में बनती थी. एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड. सो डू नॉट, देयर इज़ नो नीड टू हैव ए प्रोडक्ट विच हैज़ गॉट मोर देन 10 ईयर्स ऑफ लाइफ. 10 साल के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीज़ें आ जाएंगी. तो जापानीज़ की जितनी ऑटोमोबाइल, जितनी उनकी गाड़ियाँ, दे आर पायनियर्स इन द वर्ल्ड. उनकी हर चीज़ 10 साल की लाइफ है. 10 साल तक उसकी प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा, स्क्रैच भी नहीं आएगा. और जैसे ही 10 साल होंगे, पूरे होंगे, तो 10 साल के बाद हो सकता है सम प्रोडक्ट में फेल, बट 10 साल तक कुछ नहीं होगा. सो दैट्स हाउ दे आर चेंज द मटेरियल. कास्ट हैज़ कम डाउन.
मटेरियल्स का बदल दिया। बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत 50 साल के हिसाब से आपने डिज़ाइन करी तो बहुत महंगी पड़ती थी, अब उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, सस्ती चीज़ें लगा कर, मटेरियल चेंज करके, हल्का करके, लोड घटा करके चीज़ों की लाइफ जिसकी 10 साल से ज़्यादा उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया। 10 साल के बाद कोई हमारी वो चीज़ खरीदेगा ही नहीं। सो दे हैव कट डाउन द प्राइस, दे हैव ब्रॉट ए रेवोल्यूशन, दे हैव ऑप्टिमाइज, हर चीज़ को उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया 10 साल तक। देन risk comes from not knowing what you are doing, वहाँ से रिस्क आता है। फियर ऑफ अननोन भी उसको बोलती, फियर ऑफ कोई चीज़ आपको आती ही नहीं है, टेम्परेचर देखना आता ही नहीं, वो इक्विपमेंट को चलाना ही नहीं आता है, आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं। नॉट नोइंग समथिंग से आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर रिस्क आ जाता है। तो ट्राई टू नो द थिंग्स बिफोर डूइंग इट। अननोइंगली कोई काम मत करिए। चूज़ योर सर्कल वाइजली, पीपल बेटर देन यू। जो भी आपका वर्किंग सर्कल है, जो आपका नेटवर्क है, अगर आप घटिया आदमियों के साथ अपनी दोस्ती करेंगे, जिनको ना कोई तमीज़ है, ना बात करने, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है, उन आदमियों से आप क्या सीखेंगे? वो क्या उसको सिखाएंगे? वो आपको मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, गलत जगह में ले जाएंगे, दुनिया भर के नशों में आपको डाल देंगे। तो हमेशा ये कोशिश करिए जीवन में अपने से बढ़िया आदमियों से अपनी दोस्ती बनाइए, जिससे आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। देन कम्युनिकेशन इज़ की। जीवन में जीने के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू स्पीक इन वेरियस लैंग्वेजेस, वेरी फ्लुएंट, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। यू शुड बी एबल टू इम्प्रेस द पर्सन विद होम यू आर टॉकिंग। तभी आप इम्प्रेस कर पाएंगे ना, अगर आप अच्छे तरीके से बोलते हैं, आपके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल है, आप सभ्य हैं। अगर आप वो हथौड़ा मार का एक आदमी को रफली ही बात करते हैं, वो दूसरे आदमी को हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो आदमी आपके साथ नहीं काम कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। देन नो योर सर्कल ऑफ कंपिटेंस एंड स्टे विद इन इट। जो आपके ग्रुप बनाया है, जो आपकी कंपनी बनाई है, उस कंपनी में उनका क्या स्किल लेवल है, क्या कंपिटेंस लेवल है, क्या काबिलियत है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको पूरा पता ही नहीं है कि आपके बंदों की क्या औकात है, अगर वो एक कुक ही है, अगर वो अच्छा खाना नहीं बना सकता, तो आप क्यों न्योता देंगे लोगों को अपने घर में खाने पे क्यों बुलाएंगे? अपनी टीम की स्किल, उनकी कैपेबिलिटी को जानिए, और जानने के बाद ही एंड देन यू शुड बी अवेयर आल्सो, उसके जानिए, उसके हिसाब से अपना, तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, तभी तो आप परफॉर्म कर पाएंगे, तभी तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। देन नथिंग, प्लीज़ नोट डाउन, नथिंग इज़ ऑफन राइट मूव, समटाइम स्ट्रेटेजिक इनएक्शन इज़ बेस्ट। कई लोगों को ये आदत है, अगर मैं चुप रहा, मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे वो घटिया समझ लेगा। हर चीज़ का जवाब देना कोई ज़रूरी है? साइलेंस इज़ आल्सो गोल्ड। मैंने कई अपनी लाइफ में बहुत सारी घरों में लेडीज़ को मैंने देखा है, कुछ भी बोलिए, अगर उन्होंने कोई ना कोई जवाब जरूर दे देना। अगर वो कहते हैं उनके दिमाग में ये बात गलत बैठी हुई है, अगर मैंने हर चीज़ का जवाब ही नहीं दिया तो लोग मुझे बेकार समझने लग जाएंगे, मुझे कमज़ोर समझने लग जाएंगे, मुझे गलत समझने लग जाएंगे, मुझे बेवकूफ़ समझने लग जाएंगे। इस डोंट कैरी। कभी कभी स्ट्रेटजिकली ये आपके फ़ायदे के लिए है, जो कि आपको ओपोनेंट को नहीं बताना है। चुप रहना ही बढ़िया है। इट इज़ ए सम टाइम इन एक्शन, चुप रहना, एंड स्ट्रैटेजिक कुछ ना करना, चुप हो जाना, कोई रिएक्ट मत करना, कोई एक्शन मत लेना, वो ही बेस्ट होता है। कभी कभी देखा होगा हमारी गवर्नमेंट जो है, कभी फ़ौरन कुछ बातें हो जाती है, उसके ऊपर वो चुप हो जाते हैं। आपको लगता है चुप हो जाते हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे, बट दे आर एक्टिंग बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। उनको ये पता है कि कब हमने घूसे का घूसे में जवाब देना है, कब हमने अंदर जा कर के उसको मारना है। तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द अदर पर्सन, डोंट अंडरस्टैंड दे आर ऑल स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू बी इनएक्टिव। Inactive, being inactive, it is not because of incompetence. Then selective
opportunity, wait you pitch and then swing hard. Selective opportunities, wait your pitch and then swing hard. एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए, इंतज़ार करिए, और जब आपको मिल जाए तब उसको स्विंग हार्ड, तब उसको ग्रैब करिए, स्विंग करिए, पकड़िए। तो अपॉर्चुनिटी, सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी, जो मौके की आप तलाश में हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो डेली नहीं आती हैं, कभी कभी बहुत समय लग जाता है। उसके लिए प्लीज़ वेट, अपनी टर्न को वेट करिए और देन स्विंग हार्ड। जब आ जाए तुरंत ग्रैब करके। हमारे एक बॉस थे, वो कहते थे जब काम, पहली बात तो काम अगर आपको अपने मतलब का मिलता है तो उसको अपने हाथ से भी पकड़िए और दांतों से भी पकड़िए, कहीं भी हालत से वो आपके हाथ से स्लिप ना कर जाए। बिल्ड ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सम बी कॉशियस। अगर कुछ सेफ्टी का मार्जिन में लीजिए कि अगर वो 50 लाख का है तो आप 10 लाख और ऊपर अरेंज करिए। अगर आपके पास 50 की कैपेसिटी ऑर्डर है तो 70 का प्रोविज़न करिए। हैव टू हैव सेफ्टी प्रिकॉशन इन बिजनेस, इन लाइफ एंड इन इन्वेस्टिंग। आपके पास 2 करोड़ का सारे का सारा पैसा मत इन्वेस्ट करिए। सेफ्टी पर बिजनेस करने जा रहे हैं तो हर जगह पर आदमी है, अपने मैन पावर भर्ती करिए, सेफ्टी प्रिकॉशन लीजिए। अगर ये आदमी छोड़ जाएगा तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का भी प्रिकॉशन लीजिए। सेफ्टी इज़ फर्स्ट, दैट शुड कम इन योर माइंड। डोंट गो इन ए ब्लाइंड आइडिया, सीधे मत काम करिए। देन 17, अवॉइड डेट। ये जो बहुत सारे लोगों को जनरल एक आदत पड़ी हुई है कि हम सब कर्जा ले लेंगे, और बिना सोचे समझे कर्जा, द मनी कर्जा हैज़ टू बी पेड बैक with interest. Sometimes the interest rate, people are knowing your majburi, they are charging a very heavy rate of interest. So be cautious while taking the debt, especially personal debt. It steals options. जब आप खुद अपने नाम पे कर्जा लेते हैं तो उस जब कर्जे में आप डूबे हुए होते हैं तब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आपके पास आते हैं, उनका आप फ़ायदा ही नहीं उठा पाते, बिकॉज यू डोंट हैव मनी कांस्टेंट। आप कर्जाई हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में कर्जे में ना डूबे। देन एम्ब्रेस मिस्टेक्स, एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर कुछ गलती हो जाती है, तो गलती से कुछ काम हो जाता है, डरिए मत। कभी कभी मिस्टेक्स भी पे करती हैं, को एम्ब्रेस करिए। और अगर मिस्टेक आपने करी है, मिस्टेक समटाइम लीड टू अपॉर्चुनिटी सक्सेस, उसको एम्ब्रेस करिए। और अगर आपने मिस्टेक करी है, छिपाइए मत, डू नॉट छिपाइए अपनी मिस्टेक, एडमिट योर मिस्टेक, उसको मानिए कि हाँ साहब ये मेरे से गलती हुई है और मैंने। देन द हायरिंग ट्रायंगल, इंटेग्रिटी। जो भी आप किसी आदमी को जब हायर करते हो, अपना नौकरी पर रखते हो, तो एक हायरिंग की ट्रायंगल है, उनको मीट करवाइए। वो आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। एक ट्रायंगल बन जाती है, इसमें कहते हैं उस आदमी के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए एंड एनर्जी होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ इंटेग्रिटी, ईमानदार, सच्चा काम करने वाला, निष्ठावान, झूठ नहीं बोलने वाला। इसके अंदर काबिलियत तो इंटेलिजेंस जब तक नहीं होगी, ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द गुड्स। और अंदर इंटेलिजेंस भी है, इंटेग्रिटी भी है, तो अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, बिहार का कोई हेल्थ मिनिस्टर है, वो आदमी खुद ही लंगड़ा के चल रहा है। ही लुक्स बाय अपीयरेंस, ही लुक्स टू बी वेरी सिक मैन। So that means that factor has not been taken care of. Then read every day minimum 5 to 6 hours. इसको बोलते हैं 3L, लाइफ लॉन्ग अर्निंग। कीप योर सेल्फ, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक जिंदा हो तब तक पढ़ते रहिए। तो इसको 3L भी लोग बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब तक कम से कम 5 से 6 घंटे आप
पढ़ाई की तरफ ज़रूर एक दिन में दीजिए, तभी एवरी सिंगल डे 5-6 घंटे। देन 21st, ट्रू हैप्पीनेस। व्हाट इज़ अ ट्रू हैप्पीनेस? सक्सेस इज़ गेटिंग व्हाट यू वांट। सक्सेस को हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ हम चाहते थे अगर वो मिल जाता है तो हम सक्सेस हैं, हम कामयाब हैं। व्हाट वांट? हैप्पीनेस इज वेटिंग विच यू गेट। सक्सेस तो क्या है? जब आपने जो मांगा वो मिल गया, सब उसमें कामयाब हो गए। और हैप्पीनेस वो इंतज़ार करती रहती है, आप कब खुशियाँ मनाएंगे। खुशियाँ कभी कभी काम हो जाने से नहीं आती हैं, वो इंतज़ार करती रहती है। व्हाट यू गेट, वो जब आपको वो मिलने, जब आपको भगवान ने सब कुछ खुशियाँ देता है, आपके घर में खुशियों का माहौल आता है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो डो नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस एंड happiness, there are two different things. Then affected, busy is not the same as effective. अगर आप दिख रहे हैं कि सारा दिन आप पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं, लग रहा है कि आप सब कुछ भाग रहे हैं, but it is not that you may not be effective. Output may not be there. तो दिमाग लगाइए, सोचिए, किसी से कंसल्ट करिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल। जो आदमी दिखने में सारा दिन भागता दौड़ता पागलों की तरह लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव हो। देयर आर सम पीपल जो कि आते ही काम में कामयाबी आनी शुरू हो जाती है, वो उनको डायरेक्शन पता है किस साइड में क्या करना है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कुछ जो आदमी बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है, दौड़ रहा है, लगता है कि साहब आज तो ये अखाड़ डालेगा पहाड़ को, but he may not be very effective. You try to select a person who looks busy also, he should be very effective also. दवाई खरीदते हैं, दवाई आपने महंगी ले ली, अगर वो इलाज नहीं करती है effectively, you are not getting treated. अगर आपको उसका आराम नहीं मिल रहा, that means दवाई महंगी है, अच्छी है, ठीक है, but it is not effective. Then you have to change the medicine. Go for another medicine. Sometimes other medicine may be very effective. Simple, किसी आदमी को हम बोलते हैं ना, यार वो आदमी बड़ा सीधा है, और सीधे का मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड है, कि वो बेवकूफ़ है। सीधा होना इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स। सीधा मतलब ही इज़ नॉट चीट, ही इज़ नॉट ए फ्रॉड, बट डजंट मीन ही इज़ ए फुलिश। जो उसके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग करेंगे, वो आपके फ्रॉड और चीटिंग को समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोग चुप रहते हैं, आपकी बात को सुनते हैं लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब वो सिंपल हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। कि एक फ़िल्म में सनी देओल कहता है कि हम, आपको लगता है कि हमको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जानबूझ के चुप हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस हद तक अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हम सब समझते हैं। तो किसी भी सिंपल आदमी को कभी बेवकूफ़ मत समझिए, समझदार हो सकता है, वो आवाज़ कर रहा है आपको। देन कम्स पीपल फर्स्ट, ग्रेट टीम बीट्स पीपल। बहुत सारे लोग जो है, लोगों को प्रेफरेंस नहीं है, उनको तवज्जो दीजिए, उनको ह्यूमिलेट मत करिए, उनकी ईगो को हर्ट मत करिए, बिकॉज प्यार कभी भीख में नहीं मिलता, और ना कभी आप डांट के लोगों से आउटपुट ले सकते हैं। तो आदमी की केयर करिए, लुक आफ्टर करिए, उसकी सुविधाओं को देखिए, वर्किंग प्लेस को देखिए, क्लीनलीनेस देखिए, उसके बच्चों का देखिए, उसकी फैमिली का देखिए, उसके रिटायरमेंट के बाद का सिस्टम देखिए। पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस देश में आदमियों को लुक आफ्टर, इंसानों को, जापानीज आर कंसिडर्ड एन ए टॉप क्लास कंट्री वेयर पीपल आर लुक्ड एट। वहाँ पर कोई आदमी नौकरी पे लग जाता है तो वो कभी निकालते नहीं हैं, दे लुक आफ्टर द पर्सन टिल द लास्ट। ए ग्रेट टीम बीट्स। अच्छी टीम को बनाइए, टीम वर्क क्रिएट करिए, बिना विद ए लीडर। तो बिना लीडर के टीम एक भीड़ हो जाती है। अगर आपने उसको टीम को नर्चर नहीं करा, उनको नरिश नहीं करा, उनको लुक आफ्टर नहीं करा, तो टीम वर्क में काम नहीं आता, लोग आपस में लड़ते रहेंगे। एक टीम क्रिएट करिए,
तभी आप कर पाएंगे जब वहाँ पर टीम के मेंबर्स को आप लुक आफ्टर करिए। सीधी आर्मी किस हद तक वो टीम वर्क को क्रिएट करते हैं, लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, इवन मरने के बाद भी, उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको लुक आफ्टर करते हैं। एक ग्रेट स्प्रेडशीट बनाइए, देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी में, उसकी वेलफेयर, उसकी एलटीसी, उसका प्रोविडेंट फंड, उसकी वेयर, सैलरी, एवरीथिंग, मेक ए पक्का स्प्रेडशीट एंड शो इट टू हिम, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू। सो मैन पावर, नो व्हेन टू से नो। नो इज ए सिंगल वर्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग। कोई ज़रूरत नहीं है उसका नो के आगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाने की। अगर कोई चीज़ आपको नहीं करनी है, सिंपल से नो। कोई सफाई देने की जरूरत, हम सब अपनी ज़िंदगी में नो कहने के लिए भी हम लंबी चौड़ी सफाई देते हैं। और ज़िंदगी में हर एक आदमी को, अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, अपनी गवर्नमेंट में हो, कहीं पर हो, बहुत सारे लोग नो कहने में डरते हैं कि मेरा बॉस नाराज़ हो जाएगा। नहीं, अगर वो एक बॉस आपसे कहता है कि 100-200 किलोग्राम उठा के 8वीं मंजिल पे सिर पे लेके चले जाओ, आपको पता आप नहीं ले जा सकते, आप ले जाएंगे रास्ते में तो गिर जाएंगे, आप मर जाएंगे, उसकी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। नो कहने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत अपने अंदर जुगाड़ करिए और हिम्मत अपने अंदर पैदा करिए, और बिना डरे जहाँ पर आपको नो लगता है, प्लीज़ से नो with no prefix and no suffix. Discipline is saying no to almost everything. Not say आप डिसिप्लिन्ड वे में अगर जो काम आपको नहीं करना है, उसको डिसिप्लिन्ड वे में आप नो कहिए। नो कहना कोई पाप नहीं है, नो कहना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए प्लीज़ do not worry to say no. I was working with one in my office. There the environment was, people were not getting satisfied. They did not want to do that job. But they were never saying, आके बोलते थे, सर मैं आपको नो कैसे कह सकता था। मैंने उसको बोला नो बोलो, बोला उसने, ऐसे कह सकते। जो काम कोई बॉस आपका, जो कोई आदमी आपको इम्पॉसिबल काम कह रहा है, जो आपको और आपकी ज़मीर कह रही है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसका मर्डर कर दो, ये चोरी कर लो, डकैती कर लो, किसी रिलीजियस प्लेस में जा कर के वहाँ लोगों के जूते चुरा लो, वहाँ से गोलक से पैसा चुरा लो, अगर आपकी ज़मीर उस चीज़ को नो कहने के लिए कहती है, तो नो कहने में शर्माइए मत और करज। हालांकि मुझे मालूम है कि जहां आप स्लेवरी, जहां पर मालिकों के यहाँ आप काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जहां आप काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग द जॉब एंड नोबडी इन द मार्केट। कोई गवर्नमेंट में आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आता कि जब मेरे को ये निकाल देंगे तो मैं किसके कंधे पे जाके अपना सिर रख के रोऊंगा। आई एम ऑन द रोड एंड सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि ये मालिक कहीं कहीं, नॉट ऑल, कुछ एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर है, वो आपको एक आदमी पहले खड़ा कर देते हैं पंचिंग मशीन पे, दैट मैन विल स्टॉप यू, आज से आपकी नौकरी ख़त्म है, आप पंच नहीं करेंगे। यू सी दी साइकोलॉजिकल, जिस डर के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो आदमी गुजरता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गेट से ही आपको सिक्योरिटी गार्ड को बोल देते हैं, ये आदमी जब गेट पे आएगा इसको अंदर मत आने जाइए, वो घर से टिफ़िन ले करके तैयार हो करके नौकरी करने आया है। उसके घर वाले वो अगर तुरंत घर जाता है तो घर वाले पूछेंगे, द एंटायर फैमिली विल बी शॉक्ड, सम कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है। इसके लिए तैयार करिए अपने आप को और हैव सम अल्टरनेटिव सोर्सेज of income. Please, my request to those employers also, please look into this aspect also. आपके नो कहने से किसी की परिवार, फैमिली बर्बाद हो सकती है। There can be a catastrophe in the family. So you have to prepare yourself, be strong, be active. With this, these are the little bit of 25 tips
for a person to live in this competitive world. Unfortunately, in our India, the problem is we have no alternative. सर्टन डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप इस कंडीशन में आ जाते हैं, मालिक आपको निकाल देता है, आपको नहीं अप्रिशिएट, आपने टीम वर्क नहीं डवाला, यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर द टीम, आपको एक आदमी को निकाल दिया, आप तो भूल गए, आप पता नहीं वहाँ पर क्या महाभारत मच रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, भूख आ गई, बीमारी है, बीमारी के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, और आपको देर आर सर्टन एम्प्लॉयर्स आपको वो बोल देते हैं कि आप जाइए, तो बोला साहब मुझे आखिरी आज की तनख्वाह दे दीजिए, वो कह रहे जब आपका रूल में आपके अकाउंट में आ जाएगा। If he doesn't have a money at his home, where should he go? किस कहीं पर कोई कंधा लोगों को नज़र नहीं आता कि कहाँ जा कर के अपना सिर रख कर रोए और रिलीफ के लिए मांगे। अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट, मेक सम प्रोविजन। कागजों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स इन द कंट्री दे आर नॉट इवन फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी रूल्स। एक लेडी एम्प्लॉई है, उसको अगर वो फैमिली वे में जब आती है, अगर वो बेचारी सीक्रेट रखती है, बताती नहीं है किसी को भी, अपने पुलिस को भी नहीं बताती है कि जिस दिन मेरे मालिक को ये पता लग गया कि आई एम इन ए फैमिली वे एंड आई विल हैव टू गिव हर दैट स्टैट्यूटरी मैटरनिटी लीव, दे विल सैक मी। आई हैव सीन विद माई ओन आईज पीपल गेटिंग सैक्ड just by disclosing that I am in a family way. Forget about giving the maternity leave and other benefits to that. What about medical care? And poorly paid employees weeping to disclose a national responsibility. देश की जिम्मेवारी है एक माँ बच्चे को जन्म दे, और ये बताना ही उसके लिए कर्ज है कि मैं अपने नो कहीं पर कोई स्टैट्यूटरी, देयर इज़ नो मशीनरी विच इज़ वेयर यू कैन गो एंड अप्रोच एंड गेट द रिलीफ। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही भी हो सकता है लोग डरते हों, बट स्टिल हैव द करेज, मेक सम बैकअप। कुछ ना कुछ नेशन को, हम सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक अच्छा सा वर्केबल सिस्टम। अभी कल ही मैं देख रहा था, इट वाज शॉकिंग, वेल मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक राम टेम्पल, वहाँ पर चोरी हो गई। बट एनीवे गवर्नमेंट कर रही है काम, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, चोरों को पकड़ लेगी, डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, एक्शन भी होगा, बट देयर इज़ ए गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इस सब के साथ टुडे आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर विद द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय फेलोज, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, to please, for God's sake, subscribe to my channel, view it, share it, and comment on it. It's not a, I am not begging, it is all my request to all of you so that the message goes to everybody. Thanks a lot. Thanks a lot.